इंटीमेट सीन किया था एक दूसरे फ्रेंड के साथ एंड ही वाज वेरी अपसेट कि जैसे ना सारा अटेंशन लड़की के लिए था कि शी इज़ ओके, शी इज़ फीलिंग लाइक दैट. तो ही इज लाइक मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मतलब कुछ आई एम लाइक अ प्रेडिटर और समथिंग. आई वाज लाइक 17.5 ish और इतना सब कुछ. And then all this they told us कि ऐसा होने वाला है. तो I told And mom. that's when Aisha got spoiled. I got spoiled. हाथ से निकल गई, मैं वापस ही नहीं आ पाई. पहले crazy. ऐसा था कि वेब सीरीज आ गए हैं तो चलो there's enough opportunity you know, but फिर फिल्म्स नहीं काम कर रही हैं. तो फिल्म्स वाले वेब सीरीज में आ गए तो अब हम फिर कि अब क्या करें. Hello and welcome back to ठीक टॉक with ठाकुर. आज जो मेरी गेस्ट है वो काफी स्पेशल है और उनको इंट्रोड्यूस भी मैं एकदम स्पेशल अंदाज से करना चाहूंगा. दूसरे लोग +1 लेके आते हैं, ये -1 में आती है. कितना भी कुछ भी हो जाए, अडल्टिंग इनसे नहीं हो पाती है. टुडे शी इज लॉक्ड इन विद मी हियर इन अ चैट. आई एम होपिंग नॉट बिकॉज ऑफ अ कंपल्शन but a glee. And with that, I introduce the beautiful and talented Aisha Ahmed. Wow, that was so sweet. Good तेरे job. 3 ऐसे फिल्म्स और शोज को मैंने क्या डाला ना एकदम. That was very creative, I must say. Thank you. That was sweet. Also, I would like to say that I wanted to wait till this moment and not say it to you before that I'd like to introduce him because I don't really know a lot about you and like you, I didn't come here because you're Yashaswini's brother, so acha, I have to go or whatever. I'm genuinely very fond of you. I'm actually very fond of you, Prabodh. I don't know why, and y'all have been such great like boys just to be around, and especially about you, I've heard so much how hardworking you are, how you've taken care of your family, how you conduct yourself. So I'm very happy to be here, and I'm glad you called me. ये पहली बार हो रहा है कि मेरे शो में मेरे को कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है. अच्छा No, लगा. but I have to tell you that because हमने ऐसे कभी अकेले मिले नहीं है, कभी ऐसे बात नहीं हुई है. So I just wanted to know that I'm here for you. And not because कि अरे यशस्विनी का भाई है तो मुझे आना पड़ेगा. This is so sweet. तेरे बारे में बात करेंगे, तेरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, and what better way to start than right at the beginning, because from whatever I know about you and whatever information I have gathered, so all your childhood you lived with your nana nani. Yes. Because your mom was busy working. And obviously she's an actress, she was working in the industry, odd hours and ongoing projects, so she knew that somebody needed to be there to take care of you. So you were with your nana nani till you finally came to Mumbai to study and eventually figure out what to do. I was in a boarding school in between. तो नाना नानी के साथ I was in UP. तो एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मेरे मम्मी के कजिन्स जो थे, आई वाज वेरी क्लोज टू देम. तो एंड दे वर ओल्डर, दे वर लाइक 15, 16, 17 एंड आई वाज लाइक 9 years old, 8 years old. तो जहाँ वो जाते थे मैं उनके साथ साथ जाती थी. सो सम ऑफ दीज कजिन्स दे हैड गॉन टू मीट देयर बॉयफ्रेंड्स एट दैट टाइम. और उन्होंने मुझे, एंड दिस इज इन यूपी, ओके, इन रामपुर, और मुझे ऐसा कवर बना के नहीं हम आयशा के साथ बाहर जा रहे हैं, और मुझे लेके गए थे. और दिस वाज लाइक सम शेडी होटल, जहाँ पे कुछ ऐसा शेडी रेस्टोरेंट जहाँ ऐसे वो कर्टन्स होते हैं ना, वहाँ पे मुझे लेके गए. और मैं होटल डिसेंट प्रॉपर लाइक दैट ओनली इट वाज. और मैं वहाँ बैठी हुई थी लॉबी में एज अ चाइल्ड, और वहाँ पे वेटर आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं अरे आप अकेले फ्रेंच फ्राइज. आई एम चिलिंग एंड देन वन ऑफ माई मॉम्स कजिन, this guy, he saw us coming out of that hotel and he's like, listen, what is going on? And he picked up the call on my mom saying that आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, because like, and I was so young, right? Of course, जो दूसरे cousins थे, they were doing what anybody at that age does. You want to meet, and in a small town वो और ज्यादा होता है. आपके पास cafes नहीं है, जितना रोक टोक होगा उतना ज्यादा. तो तभी आपको ऐसे, अगर आप जैसे बॉम्बे में you can go to any cafe and sit, it's okay, मतलब आप कहोगे कि, but जो small टाउन्स में होगा, आप और शेडी जगह में जाओगे, आपको there's more risk, right? Also क्योंकि नॉर्मल कैफेज में अगर जाओगे एंड अगर किसी रिश्तेदार ने देखा, उससे बड़ा तो कांड ही नहीं है. Yeah, so that's what happened, and then I was shifted to a boarding school, and I was very happy. Where did you go? I went to this boarding school in Nasik in Devlali. It was called Bans. Yeah. सबको बोर्डिंग स्कूल जाना चाहिए, मुझे तो, मेरा यही बिलीफ है. आई डोंट नो व्हाई बोर्डिंग स्कूल्स को इतना मतलब विलेनाइज कर दिया है इन फिल्म्स एंड ऑल, बट नहीं, यहाँ पे यू हैव अनदर पर्सन हु अग्रीज विद दैट. मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुमको क्या गारंटी है कि तुम लोग जो ये बोलते हो कि हॉस्टल में जाके बच्चा खराब हो जाएगा, दोनों जगह पे दोनों चीज का गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पास तो और बेटर होगा, बिकॉज वहां पे तो लोगों की ये 24/7 ड्यूटी है ना कि स्ट्रिक्ट रहना है, देखना है बच्चे क्या कर रहे हैं. यहाँ पे फिर भी नीचे चले गए तो फिर क्या,
किसी और ने मतलब whatever like you get into stuff but मैं यही बोल रहा था, मेरे मॉम के साथ डिस्कशन हो रहा था बिकॉज मी एंड माय यंगर ब्रदर श्रेष वी बीन इन हॉस्टल्स, लाइक वी वर इन स्कूल टाइम, हम लोग पंचगनी में थे, ही वाज तो देयर फॉर 5 years, Oh, I was there for nice, only 2, nice. and then during my marine engineering time also I've stayed 4 years in a hostel. So मैं यही बोलता हूँ कि हॉस्टल तुमको लाइफ सिखाता है, Correct. एजुकेशन साइड में रह गया, वो क्योंकि कुछ एजुकेशन भी हुआ यू कांट eventually जस्ट कॉल योर पेरेंट्स एंड से मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा और यहाँ पे आई रियलाइज वन थिंग, जैसे आई वॉज अ वेरी नॉन कन्फ्रंटेशनल चाइल्ड ऑल्सो, अभी भी एज अ पर्सन आई डोंट लाइक कन्फ्रंटेशंस एंड ऑल, बट जैसे टिल द टाइम आई वाज विद माय नाना नानी ना, मुझे कुछ भी हो गया स्कूल में तो मैं छुट्टी कर लेती थी, इट वाज इजी कि नहीं कल स्कूल नहीं जाना, मुझे मेरा पेट दर्द हो रहा है, रोना धोना ये वो। जब बोर्डिंग स्कूल गई तो स्कूल में ही थी ना, तो अगर मैं स्कूल जाऊँ भी नहीं, आई एम गोना मीट सब वही आसपास है। Yes. सो दैट्स वन थिंग दैट इट रियली टॉट मी कि क्या भाग नहीं सकते, आपको यही रहना है, यही दैट्स एन करना इशू है। दैट आई आल्सो फेस, क्योंकि हमारा हॉस्टल था 3rd फ्लोर और क्लासरूम था 2nd फ्लोर, तुम कहाँ ही जाओगे, कहाँ जाओगे, करेक्ट। बट यू आर अ नॉन कन्फ्रंटेशनल पर्सन, नो वंडर यू एंड यशस्विनी गेट अलोंग सो यस मतलब यू हैव टू सी यशस्विनी और मेरे जो फाइट्स होते हैं, फाइट्स भी नहीं होते, दे आर लाइक डिसअग्रीमेंट्स, दे आर नॉट रियली फाइट्स। तो ऐसा हो जाएगा कि आर यू अपसेट, आई नो आई डिड दिस, एंड देन शी लाइक नो नो नो, एंड फिर हम एक दूसरे को एकदम नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर नहीं ऐसा तू गलत नहीं है, मैं गलत आई हूँ। एम एक्चुअली लाइक दैट, यू नो, एज अ पर्सन। तो फिर वो it's very if funny. you've ever wanted to see how it's not you, it's me works in a girls ka friendship, this is that This example. is it, yeah. Then after your hostel, a very interesting thing happened when you did finally come to Mumbai. तेरा higher education के लिए and to figure what to do, you were going to appear for your 12th का board exams. And just before that board exams, you got a 3 ad ka, Yeah. like, you know, an offer where they wanted you to shoot for all of them. Yeah. And you said yes and decided not to give your board exam, जो तूने अभी तक नहीं दिया है. Please tell us about that. मैंने ऑडिशन दिया था एक ऐड के लिए, कोक का ऐड था एंड पाकिस्तान में शूट थी। सो दे सेड योर अंडर एज, तो मतलब पेरेंट्स को भी किसी एक पेरेंट को साथ में जाना होगा, दे विल मैनेज ना। आई सर ऑफ कोर्स वी विल मैनेज एंड ऑल। और तब तक मैं अब्रॉड गई नहीं थी, आई डिडंट हैव अ पासपोर्ट। So the first country you went to was Pakistan? No, Wow. was Thailand, because पाकिस्तान में शूट नहीं होता था, they would come to Bangkok and shoot, क्योंकि वो अच्छा. इंडियन डायरेक्टर्स, Correct, इंडियन correct, एक्टर्स, इंडियन मॉडल्स Ad वहाँ के लिए था. एड पाकिस्तान के लिए था। सो देन दे वर लाइक यहाँ पे शूट है एंड ऑल, and my mom had already done a lot of like Pakistani ads and all of that, so I was like okay ठीक है, it's fair, safe, whatever. मैं वहाँ गई, they were so nice, उन्होंने मुझे डॉलर्स में पेमेंट दिया, मम्मी मेरा फ्लाइट टिकट्स, हमारा स्टे, और वो पर डे पर डियम मिलता था, रोज का खर्चा एंड ऑल दैट, एंड आई वाज लाइक वाओ, आई वाज लाइक 17 and a half ish, और इतना सब कुछ। एंड देन all this they told us कि ऐसा होने वाला है, तो I told And mom. that's when Aisha got spoiled. I got spoiled. हाथ से निकल गई, मैं वापस ही नहीं आ पाई। And mom told me, she's like, you know, you're deciding to do this, बहुत difficult होगा and all. And I was like, क्या difficult होगा, पैसे मिल रहे, काम, इसी के लिए तो काम मतलब पढ़ते हैं ताकि पैसे मिले। Love this spirit. This is what. कहाँ है आपकी डिग्री? कहाँ पे भेल वाला बेच रहा है कुरमुरे आपकी डिग्री में? कहाँ है आपकी 12th की मार्क्स? I'm not gonna support not studying. That's not you. That's me. Okay. That's what I say. मेरा मरीन इंजीनियरिंग का डिग्री जो है उसमें कुरमुरे बेचता है मेरा भेल वाला भी. Wow. See, do your degrees as long as you want to pursue a career in that direction. Correct. करने के लिए मत करो. करने के, हाँ। एंड ऑल्सो लाइक आई थिंक वन थिंग एवरीवन यूज्ड टू टेल मी कि कॉलेज का फन चला गया, वो जो कॉलेज टाइम में जो मजे करते हैं वो आप कैसे करो। मैंने बहुत मजे किए, आई हैव रियली हैड, आई हैव ओनली हैड फन, लाइक यू नो, काम हुआ साइड में ऑब्वियसली। Also, तेरे फ्रेंड सर्कल को जो मैं देखता हूँ, तुम लोग वही वाइब्स मेरे को देते हो, तुम लोग एक के घर पे बैठते हो, उसको फॉयर जैसा बना देते हो, तुम लोग कॉलेज फन ही कर रहे हो अभी। किसी एक के बहन की शादी में जाते हो, भाई के शादी में जाते हो, और सबके सब वहाँ पे फन ही करते हो। Absolutely, yeah. But I had, so this is one friends group जो सब जानते हैं, मतलब obviously Instagram के टाइम से they've been my friends, but I had another friends group before this, वो जो पूरा ऐसा scatter हो गया है, and you know we're not in touch anymore, but I've really had the best time of my life with them. मतलब उनके साथ मैं इतना ज़्यादा बिगड़ी हूँ कि अब ना मैं एकदम, like Yashaswini also tells me the same thing, she's saying you had all your fun with them only. अब तो एकदम ना, I drink, I don't smoke, I don't do anything, so they're like सारे मजे तो उनके साथ, why is nothing left now? क्योंकि मैंने इतना, मतलब मैं फैली थी बचपन में कि now it's all like, this is what I sometimes say about when I eventually do decide to get married.
So I say that I'll have to take my to-be wife for Yeah. a trip. That trip is not for fun. It's an orientation. Where Yeah, I'll- y'all this family will really have to do an orientation. No, that orientation is to tell her about my past and then to tell her that you should feel like the most secure person on earth because been there done that. मेरे को कोई लालच नहीं है. कुछ नहीं है, अब मेरा नहीं मोह करना, माया सब हाँ. जा चुका है. So मैं बहुत खुशी I रहूंगा fully तेरे agree साथ. with you. Like even now, my boyfriend, like sometimes you have these conversations, oh, acha, and this that, and I'm very insecure. I'm very possessive. तूने क्यों बोला ऐसा? अभी हमारे थोड़े व्यूअर्स कम हो गए. Oh no. तूने why? बोला कि ऐसे मेरा बॉयफ्रेंड. Oh, I thought you were gonna say insecure नहीं बोलना चाहिए. But I was like, oh इनसिक्योर no. तो सब है. हाँ. बट बॉयफ्रेंड बोलते ही वो थोड़े मेल व्यूअरशिप कम हो गया It's हमारा. fine. No, boys like ना जहाँ पे गोलकीपर है वहीं पे गोल करने का मजा वही आता. I have heard this only because I have too many guy friends. ये कहाँ से लाए हो आप? ये तो मैंने भी नहीं सुना आज तक. कौन से गाय फ्रेंड्स हैं? You've not heard this. No, but I understood the anecdote very well. And it's Yeah. I've seen it with my friends. मतलब कुछ तो मेरे friends इतने टाइम से सिंगल हैं और वो ऐसी ही लड़की या ऐसे ही सिचुएशन में जाना चाहते हैं जहाँ पता है कॉम्प्लिकेटेड और I'm like why meet a nice girl get along with her date और नहीं ऐसी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में घुसते हैं so ऐसा होता है. ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं है. सी समटाइम्स दिस ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट तुम्हारा खुद का थोड़ा वो अट्रैक्शन टुवर्ड्स टॉक्सिसिटी बिकॉज इवेंचुअली दिस डज लीड टू टॉक्सिसिटी. ऑलरेडी कोई फोन पे बात कर रहा है, तुम कंटिन्यूस कॉल करके उसको क्यों गाली दे रहे हो कि तू सेकंड लाइन पे नहीं जा रही है? क्योंकि वो बात कर रही है. Correct. Very nice. Love it. So I understand one thing that you and I have very strongly in common is When is your your friends birthday? 15th April. Oh, we're not Orients. थोड़ा हाँ, थोड़ा आगे पीछे. बट तू जिस बर्थ डेट के आसपास आती है वो बर्थ डेट के एक स्पेसिमेन से मैं बहुत अच्छा डील करता हूँ ना. 9th में प्रबुद्ध. सो आई नो दैट creature very well and I think safe to say तेरे लाइफ में भी के friends have made everything better. Experiences, the journey of life. Yeah. I live for my friends. I feel like that. Or I think they also take care of me a lot and they've really looked after me. और मुझे कभी-कभी मेरा ना बहुत ज़्यादा expectations है मेरे friends से और जब वो नहीं होता है ना I get very angry. जैसे recently मैं लड़ ली मतलब और मैं confrontational नहीं हूँ तो उनको पता नहीं है कि मैं लड़ रही हूँ तो मैं गायब हो गई मतलब for like weeks I was like crying to my other friends कि इन लोगों ने ऐसा किया इन लोगों ने तो they said उसको बोल तो दे कि ये प्रॉब्लम है. ऐसे नहीं मैं क्यों बोलूँ उनको पता होना चाहिए कि and it was legit like for a month I didn't meet them and they kept thinking कि आयशा ऐसा बिहेव कर रही है आयशा हमसे मिल नहीं रही है तो थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है मेरा दिमाग. बट this is like that school time का love when a Yeah. girl keeps fighting with you Yeah. constantly and you think she hates you the most on earth and then she's Yeah. like because I like you. Yeah, it's so toxic. And that's how I'm with my friends, मैं सबके साथ I'm okay कोई जो बोले even in relationships I can manage. I'm like ठीक है it's all can be worked but friendships are like too serious for me. I think that is how it should be क्योंकि वो relationship में क्या होता है मालूम है that relationship gives you a lot more than it takes from you. Correct. I just always feel Correct. if you choose Yeah. the right friends. If you choose the right friends. That's अगर तुम very- अनशन फ्रेंड्स चूज करोगे ना तुम्हारे पास ताकत नहीं बचेगा दूसरे को रिलेशनशिप के लिए इतना ड्रेन कर सकते हैं वो लोग तुमको. मैं बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरी सुनती हूँ कि एक फ्रेंड ने ऐसा किया फिर then she started dating my boyfriend and then he dumped me and I'm like ये कैसे ये फ्रेंडशिप होती है ये फ्रेंडशिप थोड़ी ना होती है. ये जो लोग ग्रेज एनाटॉमी इंडिया में रिक्रिएट करने का कोशिश करते हैं ना वेयर इन दैट हॉस्पिटल एवरीबॉडी स्लेप्ट विद एवरीबॉडी. It's like a merry go round. मतलब that's pretty much like not my friends group but like I mean like Don't complete that sentence, Aisha. But do it. I want you to. it's natural. I think see none of my friends have slept with each other. Like we have it's I think very clear like none of us are into each other. But I'm like very close friends with my exes. So ab they bring somebody and then that person takes them a little while to understand कि ये क्या equation है. My boyfriend took a while to understand. He's like why is your ex-girlfriend like ex-boyfriend living in your house? And I'm like but वो तो दोस्त है ना अब तो वो दोस्त हो गया. So it's but आयशा everyone तू थोड़ा गलत देश में पैदा हो गई थोड़ा और वेस्ट जाना था नहीं तुझे. मैं शायद -1 ना मैंने एम्बॉडी कर लिया मतलब ऐसा बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है मैंने. आई थिंक सेफ टू से दैट यू आर अ कैरेक्टर ड्रिवन एक्टर और तू अब वो कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ मैं. या बट दैट्स माय स्टोरी. बट टू टॉक अबाउट वर्क एंड योर कैरेक्टर्स यू हैव प्लेड अ गुड रेंज
इन अ करियर दैट इज स्टिल यंग, ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि मजाक मजाक में तेरे को 10 साल हो गए इंडस्ट्री में. हाँ यार. तूने और 17 पे चालू कर दिया था काम करना, एंड अब भी जुम्मा चुम्मा तू 28 की हुई है. इट्स सो फनी. मुझे अभी पता है ये ऐसा बहुत रीसेंट ऐसा, यशस्वी स्माइलिंग एट मी, बट लाइक इट्स अ वेरी, दैट्स अ कन्वर्सेशन आई नीड टू हैव विद हर आल्सो, बिकॉज ये रीसेंट ऐसे मुझे हिट हुआ है कि यार आई एम नॉट द इट एनी मोर. जब फिल्टर कॉपी स्टार्ट हुआ था, इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था, एवरीबडी wanted to like talk to us and like comment on our videos. Oh yaar, and अभी भी ऐसा होता है, but अब ऐसा होता है कि I've been watching you since I was so young. I've been watching you as a child. I'm like, but I am a child. अब मुझे याद आया, I remember एक शो था रीमिक्स, जो मेरे बचपन में तो एटलीस्ट था, एंड जब मैं उनके एक्टर्स से मिली थी तो मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी. ऐसा, oh I used to watch you in my childhood, and they all had this reaction like कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं. Now I'm at that place and I'm like, what, the time has passed so fast. And we'll ask you now a little bit about this journey that you've done, क्योंकि ये जो अलग अलग roles तूने किए हैं, I have been lucky enough to watch a lot of it. Did you And watch -1? I've watched -1, and I've Wow, also you should watched get an and award. I've also watched all 3 seasons of Adulting. That you had to, मतलब वो तो obviously. नहीं था obvious, बहुत लोगों ने आधे में छोड़ दिया. But मैं भी आधे में छोड़ देती अगर आज मैं नहीं होती उसमें, because you know I realized a lot later because it was very like one age centric. It was not for everybody, and like I think the people who watched it, they're old now, so it's great. their demographic target na was a very small range, yeah. and they were just going bang 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 for them only. Yeah. So उसके आगे पीछे अगर कोई भी देख रहा था ना, there wasn't lot of meat to hold them. और वो ही हुआ ना, because adulting got famous, बहुत लोगों ने देखा, इंस्टाग्राम पे भी got followers और वो सब, बट उससे कुछ काम नहीं मिला, उससे कुछ एक्टिंग. It wasn't like, even though I like how you spilled over into my next question. Okay. I was going to come to that itself, that -1 is the kind of project where you get to show your acting prowess to और some वो extent. किसी ने देखा नहीं तो So as a character that had meat, Yeah. even a person like Ayush, who's been doing so many different kind of roles, उसके पास भी करने को काम था. उसमें there was a dark side to the story. Yeah. वो चिल्लम चिल्ली, वो झगड़े, वो सब एज बहुत एन रियल है. एक्टर आपको दिखाना होता है कि मैं रो सकती हूँ, मैं टॉर्चर हो सकती हूँ, मैं कितना अच्छा हार्ट ब्रेक दिखा तू सकती हूँ. ये सब दिखा रही थी, but the person you were showing it with is one of your closest friends, and you all had like intimate scenes and all. Yeah. How weird was it? It wasn't weird at all, you know. Actually, I'm glad कि आयुष के साथ हुआ, because Ayush is a lot of things, but one thing that is there is that he is a brilliant guy. मतलब उसका बहुत सिंपल फोकस है लाइफ में कि मुझे हीरो बनना है, और मुझे आशना के साथ खुश रहना है, और मुझे घर पे टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, डाइट खाना खाना, जिम जाना है, बस. उसका है ही नहीं लाइफ में कि इधर उधर देखना, लड़की छेड़ना या कुछ ऐसा, यू नो, a lot He of gives only such a nice guy vibe. एंड इट्स दैट. और मतलब उससे मुझे बहुत कुछ पता चला आयुष के बारे में, इवन दो आई हैव नोन हिम फॉर सो मेनी इयर्स. जब हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, पहले मुझे लगता था ये बहुत रिजिड आदमी है, मतलब यू नो ही इज़ वेरी, कि वो जो एक मिडिल क्लास बॉय की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है वो उतना है, एंड हेंस ही इज़ अ गुड बॉय और व्हाटएवर. जब हमने वर्कशॉप्स करी है ना, वो सब हुआ ना, वाज लाइक वेट, ही इज़ वेरी इवॉल्व्ड. हेंस इट वाज नॉट ऑकवर्ड एट ऑल. मतलब वो तो मुझे कह रहा था कि यार ये तो बहुत किस हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा. मैं कहा नहीं कर लेंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. तो इट वॉज अ वेरी, एंड जितने लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ देखे थे पहले, एक्टर्स के, जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने इंटिमेट सीन्स किए हैं, दे ऑलवेज से कि पता ही नहीं चलता. मतलब आप जब कैमरे के सामने लाइट के अंदर हो, आप ये नहीं सोच रहे वाह, Also instructions coming इन, एंड इट्स नॉट कंफर्टेबल ना. मतलब आप ये नहीं सोच रहे हो वाह मैंने पेल दिया, like that's not your thought only. You're literally कि एंगल सही दिखना चाहिए, चीप Correct. नहीं दिखना चाहिए, आई होप इट्स बीइंग शॉट प्रॉपर्ली, अच्छा मेरा पेट नहीं दिखना चाहिए. तो वो थॉट प्रोसेस, there are 100 things on your head and you're not thinking about that. या That's a very different way of looking at it. मैंने ऐसा सोचा नहीं कि तू एज एन एक्टर तभी इतनी सारी चीजें सोच रही है कि वो ऑकवर्डनेस का टाइम ही नहीं है. ऑकवर्डनेस मतलब, और मैंने बहुत लोगों से एक्चुअली पहले सुना था जो फ्रेंड्स है, और उन्होंने, एक मेरा फ्रेंड है जिसने एक इंटीमेट सीन किया था एक दूसरे फ्रेंड के साथ, एंड ही वाज वेरी अपसेट कि जैसे ना सारा अटेंशन लड़की के लिए था, कि शी इज़ ओके, शी इज़ फीलिंग लाइक दैट. तो ही इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मतलब कुछ आई एम लाइक अ प्रेडिटर और समथिंग, यू नो, कि मुझे लोग बोल रहे ऐसा मत कर. And I'm glad he shared that with me, because then it was all about Ayush, you know. I was like, you're okay, na?
ये That's ठीक very है ना, nice of ये you. ओके ना, but But that's changing now because now I know that in many films and web shows where they know there are a lot of intimate The scenes between intimacy various coaches, yeah. intimacy जैसे coaches, हमारे में intimacy था. coordinators, Yeah. and proper workshops हो रहा है. Yeah. Like Yeah. recently I was reading वो Zendaya का भी interview about the challengers, and पूरे time intimacy director was on the set Yeah. or coordinator was on the set Yeah. कि everybody needs to be comfortable and the And theme was everybody, everybody. not just actor or like the two actors who were a part of it, but also the director ना भाई, मतलब even the DOP, वो लोग भी normal इंसान है ना, Correct. उनको भी थोड़ा ऐसा होगा, I'm sure. तो it was nice. And also what the intimacy coaches have done is that they have said कि हमारे इंडस्ट्री में, I'm sure you heard this, कि सब चलता है. Correct. हाँ कर लो ना, चलता है, अरे टाइम नहीं है यार, चलो करो. They've come in and said नहीं चलता है. Correct. और नहीं चलेगा. She's told me about other shows where she's gotten into massive, like big shows which she named, and she's got into big fights with the director because the director's like, हाँ come ना, you've signed the भगा, contract भगा, ना, भगा. हाँ कि करो. And she's like, भाई वो अपने कपड़े उतार रहा है, वो उसको नहीं भगा सकते आप. Correct. मतलब आपका काम होगा important, but उसकी तो life है ना, मतलब that's going to leave such a big mark. So yeah, I think But I'm that's glad such things are being spoken about, Yeah. and I'm so happy that the way you're taking this in your stride and thinking about it so clearly. Yeah. So big ups to you and Ayush, and the other show that we spoke about, Adulting. Yes. जो मेरा दूसरा question था, in Adulting, I personally feel that more than the show, your characters became immortal. Yeah. Like मैंने ऐसा पागलपंती और ऐसा फैंडम टू अ गर्ल टीनेज टारगेट शो देखा नहीं है मेरे लाइफ में. आई हैव सीन videos and stories and reels of you and Yashaswini going to colleges where there were 10 to 12 security people making a human chain and crowd is falling, just screaming रे निखत. मेरे को तो लगता है वो लोग भूल गए कि तुम लोग कैरेक्टर्स हो, वो लोग तुमको असली नाम से बुलाते ही नहीं. Yeah, and I think हम लोग थे भी, हम लोग अपने, we used to play ourselves only. I think that's why it did so well, you know. And now that you are talking about it, मुझे याद आ गया कि हाँ यार हमें we really got a lot of love for Adulting. But what you rightly said is कि कभी ऐसे female centric show को नहीं मिला. Correct. It was always कि boys का show है तो सारे boys मतलब हाँ bro करके, you know, that was the thing. But yes, Adulting was that one thing. I still, as much as I love Adulting, I feel like it could have been a lot more if it was given more attention and it was not just a show that was for a certain TG, you know. There could have been a lot more. जो यशस्विनी और मैंने बहुत ट्राई किया अभी कि अब हम बड़े हो रहे हैं, जो लोग ये शो देख रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो हमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे, you know, we show an opportunity थी because your characters were set so well कि जैसे जैसे कैरेक्टर का आर्क ग्रो हो रहा था तुम उसके साथ कितने और इश्यूज भी टारगेट कर सकते थे. और हम एक्चुअली ग्रो हो रहे थे ना, मतलब फ्रॉम दैट एज ऑफ बीइंग 21, 20 टू बीइंग 22, 23, इतना मतलब देयर वाज स्कोप. एंड ऑब्वियसली जो ऑडियंस था वो भी ग्रो हो रहा था, तो वी वर लाइक दे विल रिलेट एंड दे विल अंडरस्टैंड इट एंड वी हैव टू ग्रो विद इट. बट आई थिंक वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑब्वियसली मतलब आई हैव रियलाइज्ड दिस वन थिंग. एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू this guy who's head of like one of the big studios. He said कि सबके shows बनाने के reason अलग होते हैं. अगर मैं as a studio 4 shows बना रहा हूँ तो मेरा कि ये पैसों के लिए बना रहा हूँ, ये traction के लिए बना रहा हूँ, ये मेरा fame के लिए है और ये मेरा pet project. And I realized that Adulting maybe wasn't the pet project because I think that very controversial that I'm going to say it, but I think Little Things was that for them. You know, उनके लिए था कि Little Things is all about love and emotion and all of those things, and Adulting just became कि हाँ ये तो चलता ही है because but चला, and which is nice. They wanted more traction on social media, which they got, and not just them. You and Yashaswini as individuals. मेरा पूरा करियर ही Adulting की वजह से है कि अगर मैं आज मेरा घर चल रहा है तो I think उसका पूरा मतलब credit is Adulting. मैं देखो बम्प इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हाँ अडल्टिंग ने ऐसा किया है तेरे लिए अच्छा है, वो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई ऑलवेज वुड बी हैप्पी कि तेरे को और काम मिले. वो बॉल्स और वो रियलिटी चेक होना चाहिए जो तूने बोला वो बोलने के लिए. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर. आई नो मेरे बहुत लड़ाई भी हुई थी अडल्टिंग के टाइम विद द मेकर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट मुझे पता था कि यही है. अगर ये नहीं होता तो मे बी जो मेरे पास है वो नहीं होता. एंड इवन टिल टुडे पीपल कम अप एंड से मैंने आपको अडल्टिंग में देखा, तो आई अंडरस्टैंड उसका वैल्यू क्या है. बट ठीक है, आप फिर भी इश्यूज तो हो सकते हैं ना, मतलब जस्ट बिकॉज समथिंग्स गिवन यू सो मच डजंट मीन दैट यू कांट. एब्सोल्युटली.
not be like you is just the greatest thing in the world, you know. Aisha, this is not the way I wanted to meet you for the first time for a long chat, but I'm so glad this is happening. Yeah, I'm getting to know so much about you. You're such a straight shooter. I love straight shooters. Yeah, I am. And It's little problematic a lot of times, but now I हाँ, accepted in it. this industry, yes. Yeah. But I like the fact that मतलब next time जब भी मेरे को तेरे साथ chill करना रहेगा मैं और excited रहूँगा. And about some real things that we were talking about, let's talk about one real thing that is like, especially let's take an example of adulting. It gives you so much fame and name, but और काम नहीं आ रहा है. Yeah. ठीक है? What happens when you nail a project? You know you've done your best in that, and then उसके बाद the next project inquiries that are coming वो वैसे नहीं है जैसे तुझे चाहिए. The career graph that you plan in your head, Correct. and then you say no for them, and then nothing comes for months. How do Yeah. you deal with that in this industry? Nothing's come for years, Yash. And you know, I meet people और मुझे कहते हैं अरे यार you're तो everywhere. अरे यार मैंने ये देखा, मैं ये देखा. मैं उनको कैसे बोलूँ कि नहीं है मेरे पास काम. You know, of course, Instagram से influencer business is really booming and it's done very well for me. पैसे आ रहे हैं. But just yesterday I was telling with my agent और मैं उसको बोल रही थी, उनको बोल रही थी कि जो मुझे लाइफ में चाहिए था, सेटल्ड एक फीलिंग जो चाहिए थी, अपना घर चाहिए था, खाना अच्छा मिल रहा है, शॉपिंग, जब भी छुट्टी पे जाना है, दैट्स व्हाट यू वांट इन लाइफ, राइट? बट वो जिसके थ्रू चाहिए था वो तो है ही नहीं ना, तो इट स्टिल फील्स सो लाइक इनकम्प्लीट, यू नो. एंड ऑल्सो व्हाट डू आई से, हु डू आई टेल, मतलब और द थिंग विद दिस इंडस्ट्री इज कि सब आपकी ही गलती है. कोई ये नहीं कहेगा कि आपके साथ ऐसा हुआ इसलिए ये हो रहा है कि अच्छा तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तुमने ही कुछ किया होगा. यू डोंट वांट इट बैडली Your effort enough. is lacking. Your effort is, you're not ambitious enough, your effort is lacking, you don't want it bad enough, you know, इसलिए नहीं हो रहा. तो as actors and I think as directors and writers also बहुत बार ऐसा होता है, बैठ के वो दिमाग में इतना टाइम है ना, मतलब आप और क्या करोगे, तो वो ओवर थिंक ऐसे चलता रहता है. What happened with me was कि मेरा हमेशा से यही फोकस था कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ सही करनी है, मतलब नो मैटर व्हाट हैपन्स. और मैंने बहुत लोगों को देखा था जो बहुत ज़्यादा ड्रिवन है बट उनकी पर्सनल लाइफ इज़ लाइक नथिंग. और तो माई फोकस वॉज नहीं, मुझे आई वांट टू मेक माई पर्सनल लाइफ गुड, आई वांट टू मेक माई रिलेशनशिप्स विद माई फ्रेंड्स गुड, माई रिलेशनशिप विद माई फैमिली गुड. फिर उस चक्कर में मैं 28 की हो गई. और अभी जो मैं परसों अपने एजेंट से बात कर रही थी, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी इररिलेवेंट ऑलरेडी. यू नो, आई गेट इट कि लोग, और मुझे बहुत बार ये बोला जाता है कि यू नो यू आर नॉट डूइंग इनफ. अरे बट व्हाट डू आई डू? मैं ऑडिशन दे सकती हूँ, Correct. और मैं पार्टीज में जा सकती हूँ, जो लोग कहते हैं कि जिसके थ्रू काम मिलता है. नेटवर्किंग, सो टू से, नहीं होती नेटवर्किंग. और नहीं, इसका एक दूसरा वर्जन भी है. जस्ट टू ऐड टू योर पार्ट, नेटवर्किंग होती है वहां बोलने के लिए, पर वो 3 पैक के बाद है ना, वो लोग सबको ही अपॉर्चुनिटी देने को तैयार हो जाते हैं, एंड अगले दिन But I'll tell you You something. don't get no, but I'll connected. tell you something funny. अभी बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, उन्होंने कुछ 12,000 लोग आए थे वहाँ पे थे. From directors to big actors to writers to producer to studio heads to everybody. वहाँ पे सिर्फ ये हो रहा था, Hi, how are you? What's happening? Nothing. Yeah, what are you doing? Oh, so if there's anything, please let me know. तो बेचारे राइटर्स भी वही कर रहे थे, एक्टर्स भी वो कर रहे थे, डायरेक्टर्स भी वो कर रहे थे. सो व्हेन आई स्टॉप्ड एंड और अभी रियलाइज्ड, फिलहाल इंडस्ट्री की भी वाट लगी हुई है ना, तो सबका सेकंड सेंटेंस वही होगा, इफ देयर इज एनीथिंग. सो देन हु डू यू नेटवर्क विद, व्हाट डू यू डू? तो कोई है भी नहीं बताने के लिए, यू नो, लाइक यू फील लाइक कि कभी तो कोई बता देगा कि मैंने मेरे जितने फ्रेंड्स हुआ डूइंग रियली वेल, मैंने हमेशा यही देखा है, उन्होंने काम किया है, उन्हें काम से और काम मिला है, और काम से और काम मिला है, देयर इज नथिंग एल्स. सो देन जब तक वो काम नहीं होगा तो मैं और काम कैसे करूंगी, यू नो. नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं. योर वर्क इज सपोज्ड टू ब्रिंग मोर वर्क. चाहे वो एकदम स्पिरिचुअली बोलू, योर वर्क अट्रैक्ट्स वर्क, या फिर somebody needs to watch that work and say this girl is right for my next project, and then you get a call. Simple. You don't even want, तेरे को the way you're talking, and I love the honesty. तू ये भी नहीं बोल रही है कि मुझे डायरेक्ट तश्तरी में 2 रोल, तू बोल रही है ऑडिशन के लिए तो बुलाओ. मतलब एंड यू नो, पहले मुझे ये लगता था कि चलो एटलीस्ट मैं ऑडिशन तो दे रही हूँ, कि यू नो बहुत लोगों के लिए जो एक्टर्स नए आते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि ऑडिशंस हो रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कहाँ ऑडिशन. जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत ईजी था, आप आरामनगर में जाओगे, आई यूज्ड टू कैरी 3 चेंजेस, एक इंडियन कुर्ता, एक फॉर्मल शर्ट और एक कैजुअल. जाके पूछ के डू आई फिट, एंड लकीली बिकॉज आई वाज अ नाइस लुकिंग यंग गर्ल, बहुत ईजी था मेरे लिए टू गेट इनसाइड रूम्स एंड गिव ऑडिशंस. फिर पार्ट आया कि ठीक है आपको पता है कि ऑडिशंस हो रहे हैं.
बट अब जो ऑडिशंस हो रहे, अब मुझे वो काम करना नहीं है, और जो काम मुझे करना है उसके लिए मुझे ऑडिशन भी नहीं एंड मिल इन रहा। फैक्ट तू वो वाले मोल्ड में है विच इज द डिफिकल्ट प्लेस. यू हैव रीच्ड दैट लेवल ऑफ एन एक्ट्रेस वेयर तू रैंडम ऑडिशंस के लिए जाएगी तो लोग हंसेंगे कि ये तेरे लिए नहीं है. हंसेंगे भी नहीं, मुझे है ही नहीं. है ही नहीं, एंड मतलब तेरे लिए जो पर्टिकुलर कॉल होके आने वाले रहते हैं वो तेरे इंटरेस्ट का आ ही नहीं रहा है. आ ही नहीं रहा, और जो आ भी रहा है मुझे लिटरली आई एम लाइक यू नो, एंड थैंकफुली आई एम विद एन एजेंसी व्हिच इज ब्रिलियंट. आई हैव ग्रेट सपोर्ट. आई हैव एन एजेंट हु विल गो आउट ऑफ हर वे टू मेक श्योर कि That's यू नो, nice. सो एवरी टाइम आई हियर फ्रॉम समवन एल्स कि ये काम हो रहा है, आई एम लाइक गाइस कैन आई, हाँ वी आर पिचिंग फॉर यू, हाँ वी आर पिचिंग फॉर यू. बट वो पिच ऑडिशन मिलना, तो देन समटाइम्स आई थिंक अगर मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है, जो एक्चुअली बेचारे लोग आए हैं, नए हैं और कोशिश कर रहे हैं, कैसे होगा? इट्स बिकम सो. No, it's पहले ऐसा crazy. था कि वेब सीरीज आ गए हैं तो चलो देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी यू नो, बट फिर फिल्म्स नहीं काम कर रही हैं, तो अब फिल्म्स वाले वेब सीरीज में आ गए, तो अब हम फिर कि अब क्या करें? So, अब अभी क्या काम करें? फिलहाल 1.5 years से तो Has I been, think yeah. yeah, like not just films, like the overall media industry has taken a hit. Correct. And I'm just hoping that it becomes better soon. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इंस्टाग्राम है और मैं हर चीज बेच रही हूँ, एंड आई एम जस्ट That is my other story. That and you can be as honest as you want about it, because see, you have done all three things. You've been an actress, you've also been an influencer जैसा तू बोल रही है, and you've also been a creator. तुम लोग कंटेंट भी बहुत सारा क्रिएट करते हो, रिलेटेबल स्टफ. बट आई डोंट क्रिएट ना, दैट्स माय शॉर्ट, लाइक मैक्सिमम शॉर्ट कमिंग. मैं इफ यू सी मेरे सारे वीडियोस यशस्विनी के साथ है, क्योंकि यशस्विनी का जो है ये फैमिली वाला क्रिएटिवनेस, शी इज द वन. अच्छा ऐसे शूट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर मैं यहाँ से करूँगी, और हम लाइक यू नो व्हाट टू डू ना. शी इज लाइक हाँ, तो हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, मैं कर लेती So हूँ. you wouldn't call yourself a creator. You are actor and influencer. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ क्रिएटर. मैं होती तो आई थिंक और चीजें ईजियर होती है मेरे लिए करने का. Which role do you enjoy more? The influencer one or actor one? आई मीन ऑफ Be कोर्स honest. Actor one, na? या. Yeah, that like you know I had to ask you and I had to know it from your mouth, but क्योंकि मुझे वो तेरे फीलिंग्स तभी समझ में आ गया जब तूने बोला कि now everything that I had planned in my personal life is there, but the medium is not through acting. Yeah. So while having everything also you're feeling incomplete. Yeah. And that is a feeling that most of them will not even understand. और They'll be like yeah. क्या फालतू का ड्रामा कर रही है. I luckily don't have people like that in my life. So happy for I you. am so blessed कि मैं nobody like puts me down or is condescending or judges me like that. In fact वो तो मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा ये कहने में कि नो आई मिस बीइंग एन एक्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार आई एम नॉट गुड ओनली ना, तो मैं कैसे बोल दूँ. मैं ऑडिशंस नहीं दे रही, बीच में ऐसा फेज था मैं ऑडिशंस नहीं दे रही थी कि क्या होगा, मैं रिजेक्ट ही होने वाली हूँ ना, मैं क्यों दूँ ऑडिशंस. तो रोहित वाज द वन हु एक्चुअली सैट मी डाउन एंड टोल्ड मी कि, एंड वी वर इन गोवा एंड वी हैड गॉट अ प्रॉपर्टी, ऐसे कोलैब में था प्रॉपर्टी, जो फ्री में था ड्यूरिंग द लॉकडाउन. 1 महीना हम लोग वहाँ पे थे एंड वी वर नियर द पूल, और एक ऑडिशन आया था मुझे वेयर आई हैड टू प्ले डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर, और वो रोहित एंड ऋत्विक लर्नड द साइन लैंग्वेज और दे टॉट इट टू मी, और फिर behind the camera while they were taking my auditions they were doing the sign language ताकि मैं कर सकूँ, because मैं ऐसे हो गई थी उस टाइम पे कि मुझे करना ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, कि मुझे जब सिलेक्ट नहीं करने वाले. तो रोहित sat me down and he told me saying you have a great life, बंगले में रह रहे हो, गोवा में सब फ्री है, स्विम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, क्या चाहिए, क्यों कहती रहती हो आई वांट टू बी एन एक्टर, यू डोंट वांट टू बी एन एक्टर. एंड आई वाज लाइक हाँ मतलब नो आई, ही इज लाइक नहीं बनना ना तो छोड़ दो ना, क्यों कर रहे हैं हम ऑडिशन, क्यों मेहनत करनी है. And then I was like, no, okay, I want to audition and I want to be an actor. तो मतलब that's why I have like massive support from ये होता है, सही फ्रेंड्स होते हैं तो ये रिजल्ट होता है. या तो फिर उन्होंने जो मुझे पुश किया, and of course -1 was that one project which I'm so grateful for. लोगों ने नहीं देखा, that's absolutely fine, मे बी अच्छा नहीं लगा लोगों को, बट मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ. तो अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है, वरना बीच में I was like नहीं, इन्फ्लुएंसर it's fine. The most difficult part is to earn your own respect. Yeah. जब तुम वो ले लेते हो ना, like in my case also, I've never in my life given anybody else the opportunity or the control कि तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं. मैंने ना वो सबको दे दिया था कि कोई रोड पे चलता हुआ भी मुझे बोल सकता है you're good or you're bad, you know, और मैं सबसे हर चीज में सबका ओपिनियन लेती थी. वहाँ पे गलती हो गई. Yeah, and I think वो एज के साथ भी होता है, because now I'm like, and you go through बिग लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो उसी के बाद पता चलता है कि नहीं यार मैं केपेबल हूँ, करेक्ट, नहीं मैं कर सकती हूँ. लाइक राइट नाउ
I am running a house with my mother and me and all my friends come in at any point and just ये बहुत छोटी चीज़ है कि कभी भी कोई भी मेरे घर आ सकता है, खाना खा सकता है और इनफ है कि मैं 4 लोगों को खिला सकती हूँ एंड दिस इज it's such a Aisha. I don't know. Overwhelming, but I Yeah. understand where you're coming Yeah. from because Yeah. it's a whole journey. It's a whole Wanting journey, small yeah. small things to then those small things becoming so easily happening because Yeah. you work that hard. You work that hard and जब आप खुद करते हो तभी पता चलता है मतलब अभी that I am running the house in whatever in financial way at least तो जब मैं अब खाना खाती हूँ ना every time I say thank you अल्लाह पाक okay this is great this is very nice and all of that इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा Correct. खाना है हाँ खाना खा लिया मतलब what's the big deal you know but and it's the small things only that matter यार मतलब आप रोल्स रॉयस में पूरी दुनिया घूम लोगे क्या फर्क है जब घर आके वो चैन से you will eat your दाल चावल and chicken and like हाँ अब अच्छा लगा like now In short, adulting के 3 सीजन करने के बाद फाइनली अडल्टिंग होती है. अडल्टिंग ऐसे टाइम पे होती है जब आपको पता भी नहीं होता कि ये अडल्टिंग हो रही है यू नो लाइक यशस्वी एंड आई बोथ वेंट थ्रू आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैड हर इन अ वे बिकॉज ऑब्वियसली मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं दे ऑल गाय फ्रेंड्स ऑल द अदर फीमेल फ्रेंड्स वर लाइक इन डिफरेंट सिटीज और यशस्वी और मैं साथ में ही हमारा कुछ ऐसे हो रहा था तो पहले शी वेंट थ्रू इट then she crossed over then I went through it so she was there to tell me कि ये जो हो रहा है ना इसे So adulting sweet. कहते हैं You mentioned that your mom is with you at home Yes. and how you're taking care of her and you all run a house together and Yes. you're the one taking Yeah. responsibility. I So- try and then like she comes in and then I'm like हाँ माँ तो माँ ही होती है मतलब you can't do anything about that but yeah I think mother-daughter relationships are so different I'd just like to say that I'd just like to say that वो पॉज में अचानक ऐसा लगा कि एपिसोड अटक गया. नहीं बट nobody talks about it जो सारी मतलब I realize बहुत कम films भी हैं इस बारे में मतलब nobody prepares you for it because इससे पहले like my mom and I had a very simple straightforward relationship my mom's super chilled out there's never been any restrictions I have never even acted out that much so it was fine कि जैसा चल रहा है now that we've started living together it's a new relationship that's being formed you know and like I'm like oh ऐसा भी होता है ऐसा and then I have great friends so I go and like I like sit and vent and ऐसा and then they look at me like ये तो normal ही है ऐसी तो होता है मतलब ऐसी तो relationship एक normal parent और बच्चे के बीच में होती है I'm like हाँ but मुझे नहीं पता ना at 27 28 I have to do this all over again but it's But your mom, no, absolutely. This is exactly what we were getting into because your mom was working and you didn't get to spend that much time with her. And then once you started working, you quickly started living separately. Yeah. And because you wanted your freedom and ye, wo, and now you all are living together. Yeah. But when you were about to start your acting journey, what were your mom's tips? Was she like extremely supportive कर जो करना है और was she like ये industry इतनी simple नहीं है जितनी लगती है types? Nothing at all मतलब जब मैंने कहा था कि मैं एग्जाम्स नहीं दे रही हूँ तो शी वाज लाइक पक्का मेरे फैमिली में कोई पढ़ा लिखा है भी नहीं वैसे मतलब मेरे नाना ऑब्वियसली ही वाज एन आईएएस ऑफिसर एंड ही रियली वांटेड ऑल द किड्स टू बी लाइक यू नो एजुकेटेड और किसी ने पढ़ाई नहीं की नाना ने सबके बदले का पढ़ाई कर लिया और मेरी मम्मी को भी देन शी वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर पर उनकी लाइफ जस्ट वेंट ऑल ओवर द प्लेस सो शी कुडंट फिनिश हर एजुकेशन बट शी इज लाइक सो शी न्यू कि बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ हो सकता है मतलब यू नो एंड ऑफ कोर्स शी हैड दैट अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कहा श्योर मैंने कहा हाँ शी सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसे सिंपल नहीं अच्छा, है she did say, she did say. शी इज लाइक सिंपल नहीं है हाँ इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एज अ 16-year-old you're like क्या डिफिकल्ट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता एंड शी इज लाइक बट वट एवर हैपन्स तुम लाइफ में कभी यू कैन टर्न अराउंड एंड से कि आपने मुझे नहीं बताया यू नो कि आपको मुझे बताना चाहिए था कि ये ऐसा होगा तो उन्होंने बहुत पहले ही हाथ ऊपर कर दिए कि यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू आई एम नॉट गोइंग हैव अ प्रॉब्लम बट नो दैट इट्स गोना बी डिफिकल्ट तो व्हेन आई वाज 20 और फिर मतलब वो बिगनर्स लक में तो बहुत एड्स मिले और ऐसे 20,000 30,000 40 80,000 मुझे मिल गए एक ऐड करने के ना वाज लाइक वाओ आई एम किलिंग इट एट द एज ऑफ 17 18 19 20 21 नहीं 19 when I was 19 years old I did my film but वो 3 साल के लिए रिलीज नहीं हुई 3 stories so 3 साल रिलीज नहीं हुई तो 1 साल के बाद मैंने छोड़ ही दिया मैंने कहा होगी फिल्म या whatever मुझे और काम एक्सेल करना की है। थी ना if I'm not Excel wrong? की थी
बट 3 साल आई हैड नो वर्क, मतलब टू एन एक्सटेंट वेयर आई रिमेंबर रोहित एक ऐड कर रहा था और मैं उसका ऑडिशन रिकॉर्ड कर रही थी, और उसमें एक लड़की का कैरेक्टर था. मैंने कहा रोहित प्लीज़ उनको बोलो मैं कर लूँगी प्लीज़. ही सेड हाँ बट ये कितना, मतलब देयर इज नथिंग फॉर दिस गर्ल टू डू, बस आती है और चली जाती है. आई सेड इट्स ओके आई विल डू इट प्लीज़ कुछ भी. तो उसमें मुझे आई थिंक 8,000 रुपये मिले थे, एंड आई वाज लाइक आई नीड टू डू सम वर्क बिकॉज मेरे कुछ पैसे बचे ही नहीं थे. एंड बिकॉज माई मदर्स बिन अ सिंगल पेरेंट, और मैंने यही देखा था ज़िंदगी भर के जब भी मैं नाना नानी के अभी थी मम्मी के पैसे आ रहे हैं. अब वो मम्मी के पैसे कैसे भी शी वॉज सेंडिंग money for me and to run that house, and she was running her life in Bombay. Correct. तो ये था कि नहीं अब तो पैसे नहीं लेने मुझे, मतलब फिर भी लिए ऑब्वियसली जब नहीं थे. बट दैट्स एंड देन व्हेन आई वाज 20 जब पैसे नहीं थे आई वाज लाइक शिट दिस इज व्हाट माय मॉम मेंट, कि इतना डिफिकल्ट होगा, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करो. Do you think like you being, as you said, the pretty face little young girl that I am, and now you've been, as we've established, 10 साल से काम कर रही है तू ये इंडस्ट्री में, ऐसा ये होता बार है बार नहीं बोलते ये बार बार बोलेंगे मतलब सबको नोटिस हो जाएगा. हाँ ये नहीं बोलेंगे वापस. so like you know ऐसा होता है कि even in a work atmosphere ऐसा होता है कि लोग फ्लर्ट वर्ट करते हैं, या people are trying to you know कोई indirectly. फ्लर्ट नहीं करता पता है. मैं जितनों ने आई थिंक मुझसे फ्लर्ट किया I've dated them. जितनों तो I'm saying like that's a long line. Please फिर बाद में मुझे comments आएंगे कि oh how many people you've dated. I've not dated too many but nobody flirts with me. So I think that is your way of scaring them. ज़्यादा फ्लर्ट करेगा ना डेट तो कर दूंगी. relationship होगी और I don't let go easily. My relationships last very long. So it's like बता. yeah. So आना तो एक दो कमेंट या कॉम्प्लीमेंट भी लेके आना, तो सोच समझ के आना. But yeah, now that you say it, I think I've been extremely lucky because I know वो कितना difficult situation होता है जब you're not in the place of power, right? जब आप एक actor होते हो and you want to work with a director and you want to work with a producer, but अगर वो आपसे फ्लर्ट कर रहा है या ऐसे बातें कर रहा है and then you can't do anything about it, and luckily I'm so grateful कि मेरे साथ ये कभी हुआ ही नहीं है. I'm happy for you Yeah. too. And just a connected question to that. Yes. So I've heard from many actresses and even actors nowadays that if you're very open about your personal life and your relationships, does that affect like you know your work, like the kind of work you get? Are you the kind of person who's hush hush about her? No, not at all. मैंने Instagram पे तो अब इसलिए डालना बंद कर दिया because my last relationship it became like a news headline. You also know him and I absolutely love that poor boy. यार बेचारा वो newspaper में था suddenly for his relationship and he's not from the industry, so I'm like okay I have to just protect the person I'm with, but everyone knows when I'm dating somebody and I don't know. I think ये बहुत ऐसा 90s वाला to early 2000s वाला वाइब है कि ना मैं I have to seem like I'm single वरना 100%. मुझे काम नहीं मिलेगा, because I think I don't know, I could be wrong, maybe मुझे काम नहीं मिल रहा because I talk No, about no. my I relationships. think तू दूसरों के लिए मत बात कर. हमको ये पता चल गया तेरा स्टाइल क्या है. Yeah, You're yeah. upfront. You're Yeah. open about it, and I Yeah. like that because I've been on the other side, and I have also seen a few more occasions where it's like, let's not tell people. And because it then should what not be in happens, public. because like then your partner, जब किसी को पता नहीं होता है कि आप डेट कर रहे हो, your partner is going and like sleeping around and then तुमको you're कुछ just like, आइडिया ही नहीं है. I'm just saying it's better you be open about what it is. I agree. And I think Bombay is such a beautiful, safe, non-judgmental sort of course gossip सब करते हैं. मैं हर एक के बारे में gossip करती हूँ. I'm sure मेरे बारे में सब gossip करते हैं. I saw this meme which was really funny and somebody actually sent it to me saying that all the time the ring is not on the finger, like he should not be on Instagram or something like that. And I was like, great, makes sense. Perfect. That's a little too much in today's day and age. Instagram ही तो दूसरा घर है. No, but the problem is I am very open. I have no problem. But जो लोग देख रहे हैं वो थोड़े स्मॉल माइंडेड है ना, कि अगर मेरा ब्रेकअप हो गया और मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है, या इफ आई स्टॉप पोस्टिंग विद, एक तो सारे जितनी भी लड़के मैं उनके साथ पिक्चर पोस्ट करती हूँ सब मेरे बॉयफ्रेंड है. Rohit is my boyfriend, Rohan's my boyfriend, Rajat's my boyfriend, everybody's my boyfriend. Aisha, this is sounding like an ad. It's like, Rajat is my boyfriend, Rohan is my boyfriend. But that's what it is. मैं किसी भी लड़के के साथ फोटो डालूंगी, oh he's your new boyfriend, oh अच्छा he's your new boyfriend. And I'm like why does it have to be that way? तो इसलिए मैं छोड़ ही दिया. मतलब I'm not saying सबके साथ ये प्रॉब्लम है, बट मेरे साथ स्पेसिफिकली एक तो मुझे people who are like orthodox Muslims उनसे भी गाली पड़ती है, फिर मुझे हिंदू से भी गाली पड़ती है. So now I'm like मुझे कुछ डालना ही नहीं है ऐसा, you know, कि क्यों मैं डालूँ, जब शादी होगी मैं डाल दूंगी. He said yes, I said yes, all of that. तो
I think I have really had a good time and some of the conversations were so intense and dark. मतलब ये एक proper Dark where? We've dark- not even like touched dark dark yet. मतलब जब तेरी आंखें तभी moist हुई और मेरे लिए बहुत dark था. So I think when I thought of you coming here, मेरे को मालूम नहीं what persona I had of you because I've not Yeah, we've not actually spoken to you. interacted, yeah. मेरे को ऐसा लगता बबली चर्पी क्विंटेसेंशियल लड़की आ रही है सडनली तूने ऐसा मेरे को एक रोलर कोस्टर राइड पे लेके गई इट वाज अ फुल फिल्म फॉर मी इट वाज I'm happy. एंटरटेनिंग I'm glad that the discussion so real did something for you. which is something I love so I hope you enjoyed talking to us as much Yes. अब जब इसके रील्स कटेंगे तब पता चलेगा how much I have enjoyed and how much I will enjoy or not. But thank you. नहीं हम लोग तेरे को दिखाए बिना कुछ भी पास नहीं करेंगे ऐसा नहीं है एक सेकेंड अभी हम लोग तेरे लिए कुछ लाए हैं सो आई डोंट नो हाउ मेनी एपिसोड्स यू सीन ऑफ आवर्स सो हम लोग एक गिफ्ट देते हैं एंड में जो हमारे डीप थॉट प्रोवोकिंग तरीके से आता है एंड इट इज ऑलवेज पर्सनलाइज्ड सो ये गिफ्ट सिर्फ तेरे लिए ही मायने रखेगा और किसी के लिए नहीं Okay. और वो वैसा वाला गिफ्ट हम हर एक को देते हैं एंड ऑब्वियसली यू आर सपोज्ड टू ओपन इट राइट नाउ Oh, right now only. Go See, for I'll tell you something about me. My friends don't gift me things because I tell them this is shit. Don't think about giving me Don't this. say that on camera and open it. So, all the best to you. I told you it's personalized. Okay, let's see. Say what it is. Say it and point it I to literally show it to the camera. I only expect this family to come up with something like this. Like, I literally would. It's a Rampuri chaku. Reason, keep it in your bag always. Keeps you rooted to where you came from. Yes, Rampur. and keeps me safe. But Rampuri chaku is not this like. I know it opens. It opens and it's like killer. But this is not opening because opening up तो तूने already कर दिया ना conversation में. Oh, okay. On that note, no, I'm not giving you high five. That was a terrible pun. You have to, otherwise I'll stay hanging like this. No, this is very, very thoughtful and this is definitely very personalized. It is going to go next to your mirror, dressing room. This was fantastic. And Aisha Ahmed, ladies and gentlemen, big round of applause for her. Yay! क्या बात है आज ऑडियंस स्टूडियो ऑडियंस भी आई है ये सो दैट वाज अनदर एपिसोड ऑफ ठीक टॉक विद ठाकुर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लिखो आयशा ने इतनी सारी कंट्रोवर्शियल बातें की आप भी थोड़ी सी करो कमेंट सेक्शन में हम लोग रिप्लाई करेंगे उसके भी रील बनाएंगे सी यू गाइस चाओ